In Hindu religion, we often hear that there are 33 million gods. Is it? Is this true? Well, let's try to get to the grassroots level reality. So, guys, here's Princess welcoming you to yet another segment of mine. Hope you'll be thrilled and excited. World's oldest religion, Hinduism. Hinduism is not a religion. Actually, it's the evolution of human through the various eras up till the present moment. It's the way of life, leading to a peaceful destination through the road of principles. Now, as in when any particular ritual or religion travels through the time, there are many myths or stories that get attached to it. There are so many different regions following a particular religion, many different slangs, different lifestyle, which contribute to the changes to the original basic religion. So friends, as we all know that Hindu religion, also popularly known as Sanatan Dharma, is the oldest religion. The holy scriptures and literature are also ancient. When we say 33 gods, it's nowhere mentioned in the religion. Whereas yes, no doubt 33 grades or categories governed by the different attributes are surely mentioned in this religion, and this is called as Koti in Hindi. So there are 33 Koti, not 33 million mentioned. Actually, there are many words which have more than one meaning, or you can say there are words which twist their meaning for a particular sentence according to the context. So that's the reason often these words create misunderstandings. So during translation, this 33 Koti was translated by mistake as 33 million, and this spread throughout rapidly. The word Koti has two meanings. One is types or categories, and the second is million. The word Koti is used for types in context to the religious holy scriptures. In Hinduism, usually people use Koti word to congratulate someone or to greet someone. So now here they do not mean that they want to greet or congratulate million times, but they actually mean that they are congratulating and greeting all the 33 types which are mentioned in our historical and philosophical text. Let's classify all the 33 types of gods mentioned in Hinduism. Among all 33, 8 are called as Vasu. These are the 8 gods present in ourselves, our body, where our soul resides. These 8 Vasu gods are sky, wind, earth, water, sun, stars and galaxies, moon and fire. Now these are the elements our body is made up of, and hence according to Hinduism, our soul resides in all 8 of these in form of gods, Vasu, in our body. Likewise, there are 11 Rudra, which when leave the body, people declare the body as dead and cry. And that's why these 11 are named as Rudra. These 11 components are named as Pran, Apan, Vyan, Saman, Udan, Nag, Kirkal, Kurm, Devdat, Dhananjay, and the 11th one is Jivatma, which is known as soul. And when this 11th and last Rudra leaves the body becomes dead and all the relatives and family members cry. Other 12 are Aditya Koti gods. Now Aditya means sun, which takes away our age stage by stage or step by step as we grow
from infant to child, from child to teenager, from teenager to young, from young to adult, and from adult to old. Aditya means sun. It has 12 months according to Hindu calendar, and it's based on sun god. These 12 months are regarded as 12 Koti gods. So these comprises of 8 Vasu, 11 Rudra, 12 Aditya, and it becomes 31. Now 32 Koti god is Lord Indra, which actually means energy, electricity, god of rain, etc. 33 Koti god is Yaj, which means the caretaker of wind, water, sight, and architect and its scriptures, and which also develops medicines too. These are the 33 Koti gods, which are called gods because they have certain unique qualities. We should maintain these qualities in the form and purity of these 33 gods in our body. सपनों की दुनिया अजीब लगती है, झूठी ही सही पर खुश नसीब लगती है। बेशक आता है सपना कुछ पल के लिए, पर इन पलों में कामयाबी कितनी करीब लगती है। सपने, ख्वाब और हम एक दूसरे के पूरक हैं। सपने देखना कौन सिखाता है? ये तो खुद ब खुद हमारी परछाई हो जाते हैं। अगर आपने गौर किया हो, सपने भी अलग अलग किस्म के होते हैं। जैसे कुछ सपने तो हमारे अब तक के जीवन का अक्स दिखाते हैं, तो कुछ हमारे अंतर्मन की इच्छाओं का आईना बनकर हमें न सिर्फ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, बल्कि रास्ता और उम्मीद भी देते हैं। कभी फुर्सत में सोचिए, अगर आपकी आंखों में कोई सपना, कोई उम्मीद ही ना हो, तो हमारी जिंदगी कैसी होगी? काफी हद तक ये सपने हमें प्रभावित करते हैं। या तो हमारी जिंदगी का सार बनकर हमें हमारे ही प्रतिबिंब की झलक दिखाते हैं, या फिर हम खुद कुछ सपने बुनते हैं, कभी अपने तो कभी अपनों के लिए। हाँ, एक बात है, जो सपने हम खुद बुनते हैं वो हमें प्रतिकूल परिस्थिति में भी आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। ज़रा सोचिए, बिना किसी ख्वाब के हम बस एक ऐसे पक्षी की तरह हैं जिसके पंख कट गए हों, बेजान, निर्जीव। इन सपनों की ना तो कोई सीमा होती है और ना ही पूरा होने की कोई शर्त। फिर भी इन ईश्वर के दिए हुए पंखों के सहारे हौसलों की उड़ान भरने वाले अपनी मंजिल पा जाते हैं। और यही नहीं, कुछ तो नई मंजिलें तक खोज लेते हैं। वो जो मुमकिन ना हो उसे मुमकिन बना देता है। ख्वाब दरिया के किनारों को मिला देता है। सपने देखिए, पर सपनों के पूरा होने की शर्त पर नहीं। आपको कुछ चाबियां देती हूं जिसके सहारे आप सपनों की मंजिल पा सकते हैं। गौर से सुनिए। कोशिशें और हिम्मत पहली चाबी, सच्चाई और लगन दूसरी चाबी, जज्बा और जुनून तीसरी चाबी,
अपने ख्वाबों को पाने की दौड़ में अपनों को, उनके प्यार को और विश्वास को पीछे मत छोड़ देना। देर रात तक जगाते हैं सपने, अपनों से दूर कराते हैं सपने। अगर जज्बा हो आप में तो सफलता के शिखर पर पहुंचाते हैं सपने। सपने देखिए और जरूर देखिए। हर बार जब लगे कि दुनिया सिमट के रह गई है, वक्त हाथ से निकल गया है, अंधेरा हमें निगलने को है, तब फिर एक नया सपना देखिए जो आपको बंद आंखें खोलने पर मजबूर कर दे और खुली आंखों को बंद ना होने दे। फिर उठिए और सपनों की उंगली थामे चलिए नई सुबह की ओर। बस इतना याद रखिए, ख्वाब का रिश्ता हकीकत से न जोड़ा जाए, आईना है इसे पत्थर से न तोड़ा जाए। सपनों को जिंदगी मत बनाइए, अपनी जिंदगी को ख्वाब सी बनाइए। सपनों को जिंदगी मत बनाइए, अपनी जिंदगी को अपने सपनों, अपने ख्वाब सा बनाइए। हम और सपने, हम और ख्वाब एक दूसरे के पूरक हैं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। डरे क्यों मेरा कातिल, क्या रहेगा उसकी गर्दन पर? वो खून जो चश्मे तर से उम्र भर यूं दम बदम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। भरम खुल जाए जालिम तेरे कामत की दराजी का, अगर इस तुर्रेपुर पेचो एक खम का पेचो एक खम निकले। मगर लिखवाए कोई उसको खत तो हमसे लिखवाए। हुई सुबह और घर से कान पर रख कर कलम निकले। हुई इस दौर में मंसूब मुझसे बादाशमी, फिर आया वो ज़माना जो जहां में जाम निकले। हुई जिनसे तवग्गो खस्तगी की दाद पाने की, वो हमसे भी ज़्यादा खस्ताए तेगे सितम निकले। मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइज, पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले। Hello friends, with this fabulous Galib's ghazal, I welcome you to the world of desires. Desires are endless, and life's different phases brings different and totally new desires for every one of us. Friends, teenage is the age of new horizons, an age of transformation, and most popularly, we call this age as the most confused and rebellious age. Today's segment is a glimpse of teenage world, when everyone seems to categorize you as a child or adult according to their own convenience. And even you find yourself dwelling in switching in and out of your childhood and adolescence. दोस्तों, इस दौर में अक्सर आसमां भी अपनी पहुंच में नजर आता है, जब हर रोज नई उम्मीदें आंखों में जुगनुओं की तरह टिमटिमाती हैं। नई ख्वाहिशें
अनजानी राहों पर आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। दोस्त दिल के करीब लगते हैं और वक्त अक्सर घर के बाहर ज़्यादा कटता है, जब आईना हर पल हमारा अक्स संवारता रहता है और हर किसी की आंखों में अपने लिए तारीफ नजर आती है। और हो भी क्यों ना, इस दौर में हर शख्स अपने दिल का बादशाह जो होता है। अब टीनेज की बात हो और आपको अपना पहला प्यार याद ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। पहली मोहब्बत के लिए दिल जिसे चुनता है, वो अपना हो ना हो, दिल पर राज हमेशा उसी का रहता है। जब बारिश की बूंदें दिल की तारों को छेड़ जाती हैं और नए पलों के नए एहसासों में दिल को भिगो देती हैं। पहला खिलौना, पहला स्कूल, पहला कॉलेज, पहला दोस्त और पहला प्यार भुलाए नहीं भूलते। हर तरफ फूलों को देखकर दिल खिल जाया करता है। सर्दियां सर्द कम और प्यारी ज्यादा लगती हैं। हर मौसम सिर्फ हमारे लिए ही अपने रंग बिखेरता, गुनगुनाता, महकता हुआ नजर आता है। जिंदगी का पहला प्यार कौन भुलाता है? ये पहली बार होता है जब कोई किसी को खुद से बढ़कर चाहता है। उसकी पसंद, उसकी ख्वाहिश में खुद को भूल जाता है। अकेले में उसका नाम लिख लिख मिटाता है। बात करने से पहले सोचता है क्या कहना है। बात होने के बाद फिर भी कुछ रह जाता है। होता है खूबसूरत कितना पहला प्यार, न जाने क्यों अक्सर अधूरा रह जाता है पहला प्यार। जिस तरह पहला प्यार खास होता है, उसी तरह पहला दोस्त भी बहुत खास होता है दोस्तों। वो दोस्त जो हमारी नादानियों का गवाह होता है। कभी दोस्त, कभी भाई, कभी बहन और कभी माँ बाप होता है। याद है वो पहला दोस्त जो मेरे मन को भाया था, मिट्टी में जिसके संग लोट-पोट पूरा बचपन बिताया था। उससे पहली मर्तबा वो रूठना भी मुझे याद है। कैसे भुला दूं मेरा बचपन, मुझे वो पहला दोस्त अब तलक याद है। चलिए खोलिए अपनी यादों की एल्बम और खो जाइए इस उम्र के रोमानी एहसास में। और अगर आप इस उम्र को जी रहे हैं तो संभल जाइए। इस उम्र में और समंदर की लहरों में जरा भी फर्क नहीं है। संभल के चले और जी भर कर अपनी जिंदगी जिए। और हो भी क्यों ना, इस दौर में हर शख्स अपने दिल का बादशाह जो होता है। When every dream is the first and last dream। और लगता है कि बस अब इस सपने के टूटने के साथ हमारी जिंदगी थम जाएगी। एक तरह से कहें तो ये उम्र हमें आगे आने वाली जिंदगी की तरफ ले जाने वाला पुल है। अब आप किस पुल से गुजरते हुए किस मंजिल को चुनते हैं, ये तो आपकी किस्मत है। कुछ सही राह चुनते हैं और कुछ भटक जाते हैं। सबसे हसीन और बेपरवाह उम्र, जब हर अजनबी शख्स अपना और हर गम पराया लगता है। ये उम्र जितनी बेपरवाह है उतनी ही अहमियत भी रखती है दोस्तों। यहीं से हमारी आगे आने वाली जिंदगी की नींव डलती है। आप अपनी जिंदगी में किस तरह जाने पहचाने जाएंगे, इसी उम्र में आप और आपके परिवार वाले इसकी शुरुआत करते हैं। इस उम्र में हमारा आधा दिन हमारे कॉलेज में बीता करता था। ऐसे कई किस्से हैं जो आज भी मन गुदगुदा जाते हैं। मैं हूँ आपकी पहली तो नहीं पर सबसे गहरी दोस्त प्रिंसेस। Signing off for this segment. Do hit the likes and subscribe.
friends, this is Princess, welcoming you in yet another segment of Triumph Over Travail. How's the new year treating you? Well, I hope you're enjoying every bit of it. Desires. आज आपको ले चलती हूँ ख्वाहिशों की दुनिया में. We all have desires. तमन्नाएं दोस्तों, कभी गौर किया है हर उम्र अपने साथ बदलती हुई तमन्नाएं लाती है. वो कहते हैं ना, फितूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा, खिलौने, इश्क, पैसे, फिर खुदा खुदा. मासूम बचपन की ख्वाहिशें भी मासूम ही हुआ करती हैं. हम सबका बचपन उलझनों से परे बेपरवाह और मासूम होता है, जब एक खिलौने से पूरी दुनिया बदल जाती थी और अपनी नींद सबसे ज़्यादा प्यारी हुआ करती थी. बचपन के किस्से अक्सर हमें हंसा जाते हैं. प्यारे प्यारे झूठ बोलना, बड़ी मासूमियत से हंसकर अपनी गलतियों की सज़ा माफ़ करवा लेना. वो बचपन की अमीरी न जाने कहाँ खो गई, जब पानी में हमारे भी जहाज चला करते थे. बचपन कितना अमीर हुआ करता था, रेत के महल बना लिया करते थे हाथों से. बचपन में बड़ी सुकून भरी दोपहर हुआ करती थी दोस्तों. हम सभी बच्चे कभी कभी रंग बिरंगी तितलियों के पीछे भागा करते थे. अलग अलग कलर पैटर्न्स की तितलियां देखकर उन्हें पकड़ने के लिए मन मचल जाया करता था. और जब पकड़ लेते थे तो माँ समझाती थी कि बच्चों, इन्हें आज़ादी से उड़ने दो. आप सबकी लाइफ से ये एक किस्सा ज़रूर जुड़ा हुआ होगा. आपको याद है हम सब का वो पहली बार साइकिल सीखना, बार बार चढ़ना और बार बार गिरना, वो पापा का साइकिल को पीछे से पकड़कर हमें सिखाना, और फिर पता ही नहीं चला कब पापा ने साइकिल छोड़ दी और कब हम सब साइकिल चलाना सीख गए. कितनी बड़ी अचीवमेंट लगा करती थी, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लिया हो. कागज़ की कश्ती थी, पानी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी और ये दिल आवारा था. कहाँ आ गए हम इस समझदारी की दलदल में. वो नादान बचपन भी कितना प्यारा था. आज के बच्चों को ना हम वो खुले बाग बगीचे दे सकते हैं खेलने के लिए, ना ही वो बेपरवाह और हिफाजत का माहौल. देखा जाए तो हम इंसानों ने बच्चों से उनका बचपन छीन लिया है. फ्रेंड्स, थिंक अबाउट इट. हमें अपनी ज़िंदगी इस तरह जीनी चाहिए कि आगे आने वाली जनरेशन्स को हम मीठी और प्यारी यादें दे सकें. दोस्तों, बचपन कभी लौट के नहीं आता, पर अगर हम उसका एक हिस्सा अपने अंदर संजोए रखें तो हमारी आधी उलझनें कम हो जाएंगी. किसने कहा नहीं आती वो बचपन वाली बारिश, तुम भूल गए हो अब नाव बनानी कागज की. उम्मीद करती हूँ आप खो गए होंगे अपने बचपन की मीठी सी याद में, उन अधूरी ख्वाहिशों में. So friends, this is Princess signing off for this segment. Do hit the likes and subscribe. भाई का प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता. वो चाहे दूर भी हो, कोई गम नहीं होता. अक्सर रिश्ते दूरियों से फीके पड़ जाते हैं, पर भाई बहन का प्यार कभी कम नहीं होता. Hello there, all the lovely sisters and adorable brothers. I wish you all a very happy रक्षा बंधन. आप सभी को इस प्यारे अनोखे रक्षाबंधन के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं. खुश नसीब है वो बहन जिसके हिस्से में भाई का प्यार और साथ होता है. चाहे कुछ भी हो हालात, ये रिश्ता हमेशा साथ होता है. ए रब,
मेरी दुआओं का इतना तो असर रहे, मेरे भाई के चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहे। बहन भाई के पवित्र अनमोल रिश्ते को ये रक्षाबंधन का त्योहार और भी पक्का और मजबूत बना देता है। रक्षाबंधन श्रावण माह के पूर्णिमा में पड़ने वाला प्रमुख भारतीय त्योहार है, इसलिए इसे श्रावणी और सलोनी भी कहा जाता है। श्रावणी पूर्णिमा में रेशम के धागे से बहन द्वारा भाई की कलाई पर बंधन बांधे जाने की रीत को ही रक्षाबंधन कहते हैं। पहले के समय में रक्षा के वचन का ये पर्व विभिन्न रिश्तों के अंतर्गत निभाया जाता था, पर समय बीतने के साथ ये भाई बहन के प्यार का प्रतीक बन के उभरा है। रक्षाबंधन का इतिहास बहुत ही प्रेरणादायक है और इसका प्रमाण हमें हमारी पौराणिक कथाओं में भी मिलता है। रक्षाबंधन के इतिहास को कई पौराणिक कथाओं से भी समझा और जाना जा सकता है। जैसे एक बार की बात है, देवताओं और असुरों में युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध में देवताओं की हार हुई और उसके परिणाम स्वरूप देवताओं ने अपना राजपाट सब गवा दिया और राजपाट फिर से पाने के लिए देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति से मदद की गुहार लगाने लगे। देवगुरु बृहस्पति ने श्रावण मास की पूर्णिमा के प्रातः काल में इस मंत्र से रक्षाबंधन का विधान संपन्न किया। येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम भिवध्वनामि रक्षे मां चलः। इस पूजा के मंत्र से अभिमंत्रित सूत्र को इंद्राणी जी ने देवराज इंद्र के हाथ पर बांध दिया और युद्ध में देवराज इंद्र को विजय प्राप्त हुई। उन्हें अपना हारा हुआ राजपाट दोबारा मिल गया। रक्षाबंधन का त्योहार कैसे मनाया जाता है ये तो आप सभी जानते हैं। बहनें सुबह स्नान करके पूजा की थाल में कुमकुम, राखी, रोली, अक्षत, दीपक और मिठाई रखती हैं। फिर घर की पूर्व दिशा में भाई को बिठाकर भाई की आरती करके सिर पर अक्षत डालकर माथे पर कुमकुम लगाकर तिलक करती हैं और फिर राखी बांधती हैं। अगर भाई छोटा है तो उपहार बहनें देती हैं। अगर बड़ा भाई हो तो भाई बहन को उपहार देते हैं। अच्छा, शायद आपको जानकर हैरानी हो, पुराने समय से एक और रीत चलती आई है। परिवार की छोटी बेटी द्वारा पिता को राखी बांधी जाती है। जैसे मैंने अभी आपको रक्षाबंधन का एक कारण और कथा सुनाई, वैसे ही हमारे पुराणों में कई कथाएं इसको प्रमाणित करती हैं। आप सभी में जो भी बहनें अपने भाई से बहुत प्यार करती हैं, जो चाहती हैं कि उनका भाई जुग जुग जिए, उन्हें ये कथा जरूर सुननी चाहिए। ये कहने को कथाएं हैं, पर इनका अस्तित्व तो साइंस भी नकार नहीं पाई है। तो सुनिए, ये कथा है यमराज देवता जी और उनकी बहन यमुना देवी माता जी की। ये कथा वैसे तो भाई दूज की है, पर बहन भाई के प्यारे रिश्ते को दर्शाती जरूर है। भाई दूज पर इस कथा को जरूर सुनना चाहिए और जब भी किसी बहन को अपने भाई की चिंता सताए, उसे ये कथा जरूर सुननी चाहिए। यमराज पूरे 12 वर्षों तक अपनी बहन यमुना से मिल नहीं पाए। जब किसी ने उनसे अपनी बहन से मिलकर आने के लिए अवकाश मांगा, तब उन्हें याद आया कि वे अपनी बहन से बहुत वर्षों से मिले नहीं हैं। यमराज जब यमुना से मिलने गए तो उनकी बहन यमुना ने उनकी आरती की, तिलक की, मिठाई खिलाई और यमराज ने उन्हें उपहार दिए। और उस दिन से यमराज जी ने ये वरदान दिया कि जो भी भाई उस दिन अपनी बहन से तिलक लगवाएगा और ये त्योहार मनाएगा, उन्हें कभी मृत्यु से डरना नहीं पड़ेगा, उनकी दीर्घायु होगी।
रक्षाबंधन की एक कथा बहुत ज़्यादा प्रचलित है। कथा है श्री कृष्ण जी और द्रौपदी जी की। भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया गया। तभी श्री कृष्ण जी की उंगली भी कट गई। उंगली के कटने पर रक्त बहता देखकर द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर बांधी। उनके इस सत्कर्म को देखकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देकर कहा था कि एक दिन मैं अवश्य तुम्हारी साड़ी की कीमत अदा करूंगा। इसी कारण द्रौपदी को चीरहरण से बचाने के समय श्री कृष्ण जी ने उनकी साड़ी को ब्याज सहित इतना बढ़ाकर लौटाया कि द्रौपदी की लाज बच गई। द्रौपदी का मूल नाम कृष्णा था। राखी जैसे पवित्र बंधन की महिमा का गुणगान इस पौराणिक कथा से सुनने को मिलता है। श्री गणेश भगवान जी के 2 पुत्र हैं, शुभ और लाभ। एक बार रक्षाबंधन के अवसर पर शुभ और लाभ बहुत उदास थे। इसका कारण था उनकी कोई बहन नहीं थी। सभी देवी देवता और मनुष्य रक्षा सूत्र बंधवाकर प्रसन्न थे, लेकिन शुभ और लाभ की कलाई सूनी थी। उन्होंने अपनी ये व्यथा श्री गणेश भगवान जी और माता रिद्धि और सिद्धि जी से कही। श्री गणेश भगवान जी ने अपने पुत्रों की इच्छा स्वीकार की और माता रिद्धि सिद्धि ने दैवीय ज्योति से संतोषी माता जी को उत्पन्न किया। संतोषी माता जी ने शुभ लाभ को राखी बांधी और इस प्रकार रक्षाबंधन का ये पर्व श्री गणेश भगवान जी के परिवार में नई खुशियां लेकर आया। अगर रक्षाबंधन की अटूट ताकत की झलक देखनी हो तो आइए आपको ले चलती हूँ थोड़ी शताब्दियां पीछे। एक प्रचलित कथा है रानी कर्णवती और हुमायूं की। कई लोकगीतों में भी बताया जाता है कि रानी कर्णवती की राखी पाकर हुमायूं अपनी मुंहबोली बहन की रक्षा के लिए निकल पड़े थे। हुआ यूं कि चित्तौड़ पर बहादुर शाह ने हमला कर दिया। अपने राज्य को बचाने के लिए राणा सांगा की विधवा रानी कर्णवती के पास इतनी सैन्य शक्ति नहीं थी कि वो अपनी प्रजा और राज्य को बचा सके। ऐसे में उन्होंने अपने मुंह भोले भाई हुमायूं को राखी भेजी। धर्म अलग होने के बावजूद हुमायूं ने कर्णवती की राखी की लाज रखी और फैसला किया कि वो मदद के लिए जरूर जाएंगे। चित्तौड़ की रक्षा के लिए एक विशाल सेना लेकर हुमायूं चित्तौड़ की ओर चल दिए। हाथी घोड़ों की विशाल सेना लेकर चित्तौड़ पहुंचने में हुमायूं को काफी वक्त लग गया, लेकिन जब तक हुमायूं चित्तौड़ पहुंचे, रानी कर्णवती ने चित्तौड़ की वीरांगनाओं के साथ जौहर कर लिया। उनके जौहर के बाद बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। ये सुनकर हुमायूं को बहुत दुख हुआ और दुख और क्रोध में हुमायूं ने चित्तौड़ पर, जिस पर बहादुर शाह का कब्जा हो गया था, उस पर हमला कर दिया। इस युद्ध में हुमायूं को विजय मिली और इसके बाद हुमायूं ने पूरा शासन रानी कर्णवती के बेटे विक्रमजीत को सौंप दिया। इसी के बाद से रानी कर्णवती और हुमायूं का बहन भाई का रिश्ता इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। कहा जाता है जब अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे हम सिकंदर के नाम से जानते हैं, उसने जब भारत पे धावा बोला, तब उसकी पत्नी रोक्साना ने पोरस को एक पवित्र धागा भेजकर ये प्रार्थना की कि पोरस उनके पति को नुकसान ना पहुंचाए। पोरस ने राखी की लाज रखते हुए सिकंदर को युद्ध में मारा नहीं और इसी वजह से वो युद्ध हार भी गया। बड़े बड़े युद्ध टालने की ताकत सिर्फ और सिर्फ इस पवित्र रक्षा बंधन में है। इसी तरह एक और बहुत ही प्रचलित कथा है श्री लक्ष्मी माता जी और राजा बाली की।
जब श्री लक्ष्मी माताजी राजा बाली के पास आश्रय मांगने हेतु पहुंची, राजा बाली ने बिना हिचकिचाहट अपने महल के द्वार खोल दिए। श्री लक्ष्मी माताजी बहुत प्रसन्न हुई और अपने साथ धन, धान्य और ऐश्वर्य भी ले आईं। श्रावण मास की पूर्णिमा को श्री लक्ष्मी माताजी ने राजा बाली की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। राजा बाली ने जब उनसे पूछा कि उनकी क्या इच्छा है, तब प्रसन्न होकर उन्होंने राजा बाली से उनके द्वारपाल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जो श्री विष्णु भगवान जी हैं, उन्हें यानी कि मेरे पति को मेरे साथ लौटने की अनुमति दे दे। राजा बाली ने श्री विष्णु भगवान जी से लौटने की याचना की और उसके जवाब में श्री विष्णु भगवान जी ने राजा बाली को हर वर्ष के 4 महीने राजा बाली के पास लौटने का वचन दिया। इतना प्यारा और इतना खास होता है ये त्योहार। इसकी शक्ति का एहसास हर भाई बहन को होता है, चाहे बहन भाई कितने ही दूर क्यों ना हो। खूबसूरत एक रिश्ता तेरा मेरा है, जिस पे बस खुशियों का पहरा है। नजर ना लगे कभी इस रिश्ते को, दुनिया का सबसे प्यारा भाई मेरा है। मांगी थी दुआ हमने रब से, देना मुझे एक प्यारी बहन जो अलग हो सबसे। उस खुदा ने दे दी एक प्यारी सी बहन और कहा संभालो ये अनमोल है सबसे। बहन और भाई का रिश्ता सिर्फ खून का रिश्ता ही नहीं, बल्कि ये जुड़ा होता है बहुत प्यारी अनमोल यादों, एहसासों और खुशियों से। जब भी भाई बहन एक दूसरे से अलग रहते हैं, उनके दिल हमेशा एक दूसरे के सुख दुख के एहसासों से जुड़े होते हैं। इसे बस बातें मत सोचिएगा, आजमा के देखिए। जब भी आप मुसीबत में होंगे तो आपकी बहन या आपके भाई को ही सबसे पहले आप अपने साथ खड़ा पाएंगे। ये भाई बहन का रिश्ता तो खुद भगवान ने बनाकर भेजा है। सारी दुनिया में माता पिता के अलावा सिर्फ भाई बहन का रिश्ता ही है जो आपकी ताकत बनकर आपका साथ निभाता है। इस अनमोल रिश्ते की कद्र कीजिए, इसे संजो के रखिए। जो ताकत, जो जुड़ाव हमारी भारतीय संस्कृति में है, वो और कहीं नहीं है। ये त्योहार, ये संस्कार, ये खुशियाँ हमारी धरोहर हैं। हम चाहे ना चाहें, सुख हो या दुख, हमें ये रिश्ते अपनी महत्वता समझा देते हैं। कभी दुख में हमारा हौसला बनकर और कभी खुशी में हमारा हमसाया बनकर। तो आज के रक्षाबंधन के पावन अवसर पर आप सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहिए और पूरे उत्साह से मनाइए ये प्यारा अनोखा सा पर्व रक्षाबंधन, बहुत सारी मिठाइयों के साथ। This is Princess wishing you a very happy Raksha Bandhan. Enjoy. Great countries have great history. Graceful histories are written with great pains and struggles. Great were those who fought to bring this day in India's history. With all the pride and happiness which I am feeling today, I wish all my listeners a very happy Independence Day. Freedom is never free, it's precious. National Freedom Day is about admiring all the past heroes who fought bravely, who served the country well and achieved freedom for the next generation. Let's try to be at least a good citizen for this day. These short steps will definitely lead to a beautiful united India for sure one day in future.
Feel the freedom we have, imbibe within, and enjoy. Happy Independence Day. Heartiest wishes from Princess to all of you. Let's not forget the sacrifice our freedom fighters have made for our freedom. Happy Freedom Day to all. I will share a thought of Mr. Nelson Mandela, which has a deep hidden message for all of us. To be free is not merely to cast off one's chains, but to live in a way that respects and enhances the freedom of others. Achieving freedom from Britishers was the first step, but freedom is a state of free being, free mind, which can be attained in a truly democratic, peaceful country or environment. Working together to unite the nation, promote democracy, and protect freedom. These are the steps of the ladder of freedom. Independence Day reminds us of great paragons which were foundation of the dream of free India, envisioned and realized by founding fathers. Our predecessors have successfully done their share of duty, and now it lies in the hands of today's youth to shape the future of our motherland. Motherland now looks up to us how we perform our part. Feel the wind of patriotism and national integration that blows across the country today. Freedom comes with our share of responsibilities. Let us take the oath to maintain them and fulfill them. Patriotism is about loving both country and countrymen. I hope every one of us can contribute something to our country in this lifetime. Happy National Independence Day. Enjoy, appreciate the freedom we have today, and always remember to uphold national unity first, and to remember those who sacrificed their lives for freedom. Those were the people with golden heart, who had patriotism running in their blood. For those who hardly thought about religion, caste, community, and just had one passion, free nation. Let's try to be at least a good citizen for this day. These short steps will definitely lead to a beautiful, united, free India. For sure, one day in future, feel the freedom we have, imbibe within, and enjoy. Happy Independence Day. Heartiest wishes by Princess to all of you. Hello friends, this is Princess welcoming you in yet another segment of Triumph Over Travail. Are you fond of dreaming? Yes, dreams. Dreams are like stars. You may never touch them, but if you follow them, they will lead you to your destiny. We and dreams are supplemental. No one lessons us how to dream, but yes, they just follow us as our shadows throughout. Every mechanism needs a catalyst to run the mechanism faster, right? So these dreams are those catalysts that gear you up to reach your aim. Hold fast to dreams, for if dreams die, life is a broken winged bird that cannot fly. Let your dreams be your wings. Dream until your dreams transform into reality.
Dreams are the foundation that unknowingly our brain cements to build our castle of our desired destiny. If you have the zeal to convert your dreams into reality by taking proper action at proper time, you may shape your life your way. But if you fail doing so, there are chances that someone else will hire you up to build their future. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. So guys, stay positive. And this is not in terms of pandemic, right? Work hard and make it happen. Once a lady was selling fruits. While selling the fruits, she suddenly passed in front of Sri Krishna's house. Sri Krishna felt like eating some fruits. So when Sri Krishna asked for some fruits from the lady who was selling the fruits, she asked, "What will I get in return?" Sri Krishna went running inside the house to give the woman food grains instead of fruits, and came back to the fruit seller with a handful of grains. But as he came, the whole grain fell from his hands. Krishna repeatedly goes inside the house and tries to bring some grains in his hand, but the whole grain would fall down. She was very happy to see this and gave all the fruits to Krishna. Sri Krishna was very happy with that woman. When she went from Krishna's house containing her empty crate and reached her home, she saw that her basket was full of gold and jewels. Now, if we open our hearts a bit for those who are really in need, God Himself gives us 10 times more in return. That too without asking. Sometimes we don't get even on our demand what we want. But our selfless deeds can bring us every happiness without our asking or demanding. There was a sage called Vedvyas. Now one day, Vedvyas asked Lord Ganesha to pen down the text of epic Mahabharata while he narrates and help him. Now Vedvyas had one condition, that this should be written in one go, without any pause. Now when Lord Ganesha started writing, in mid of the text the quill which he used breaks. Then without any delay, Lord Ganesha breaks his own tusk and completes the rest of the text and fulfills the sage's condition. Now the moral of the story is, quick thinking and being resourceful saves the day. एक बार एक लड़का हुआ करता था जिसका नाम था अंकित। अब क्योंकि ये लड़का किशोरावस्था में था तो बहुत ही नटखट था। ये जहाँ रहता था वहाँ एक बहुत ही सुंदर और पावन नदी बहा करती थी। एक दिन सुबह सुबह अंकित नदी के किनारे गया और जैसा कि हमेशा करता था वहाँ खेलने लगा। अचानक उसने देखा कि वहाँ एक आदमी आया और बहुत ही ध्यानपूर्वक अपना योगाभ्यास करने लगा। वो आदमी मन ही मन कुछ जप रहा था। अब जैसा कि अंकित का स्वभाव था, उससे रहा न गया और उसने शुरू कर दिया उस आदमी को तंग करना। वो आदमी इतना तंग हुआ कि वो उठ गया, लेकिन बजाय गुस्सा करने के वो आदमी हंस रहा था। उस आदमी ने अंकित को थोड़े से पैसे दिए, थोड़ा सा हंसा और वापस चला गया।
दूसरे दिन फिर वही आदमी आया, फिर अंकित ने उसके साथ वही किया और फिर वो आदमी उठा, फिर उसने अंकित को पैसे दिए, फिर थोड़ा सा हंसा और वापस चला गया। जब ऐसा कई दिनों तक होता रहा तो एक दिन उस आदमी की जगह एक बहुत ही हृष्ट पृष्ट आदमी वहां आया, जो वहां आकर दंड पेलने लगा। अब अंकित ने सोचा कि अगर मैं इसे भी तंग करूं तो मुझे फिर से पैसे मिलेंगे। बस अंकित ने आव देखा न ताव और शुरू कर दिया उसे तंग करना। अब हुआ यूं कि उस हृष्ट पृष्ट व्यक्ति ने अंकित को उठा लिया और अपने सारे जितने भी करतब थे उसे दिखा के उसे अच्छा सबक सिखाया। अंकित को उसका सबक मिल गया। इससे हमें यही पता चलता है कि कोई भी काम जो हम सीमा के बाहर जाकर करें, उसका नतीजा हमेशा गलत होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं, देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशय गोविंदाय नमो नमः। हे लालों के लाल हमारे प्यारे ठाकुर नंदलाल, बुराई से रक्षा करो, दुखों का करो संहार। आप सभी को मुबारक हो जन्माष्टमी का ये त्योहार। यशोदा के कृष्ण के, राधा के श्याम के, ग्वालों के कान्हा के, गोपियों के माखन चोर के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी। लीजिए, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ गई हमारे बाल गोपाल की पालकी। जन्माष्टमी आप सभी को मुबारक हो। आज जो हमारी दुनिया झेल रही है, हम सभी जानते हैं कि हम उतने विस्तार से भले ही ये ना मना पाएं, पर हम सभी के दिलों में अपने बाल गोपाल के लिए प्यार और उत्साह उतना ही है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। तो आप सब ने तैयारी तो कर ही ली होगी जन्माष्टमी मनाने की। चलिए, जिन्हें इस त्योहार के बारे में जानकारी नहीं है, उनके लिए मैं इस त्योहार की रूपरेखा कारण आप सबको एक बार बता दूं। कृष्ण जन्माष्टमी को गोकुल अष्टमी भी कहा जाता है। इसे हमारे संपूर्ण भारत में भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। हम जन्माष्टमी को कृष्ण पक्ष की अष्टमी पर मनाते हैं। द्वापर युग के अंतिम चरण में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्यरात्रि में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। हमारे पुराणों में इस दिन व्रत रखना बेहद अहम बताया गया है। जन्माष्टमी एकमात्र पूजा अर्चना का विषय नहीं है, बल्कि एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी ज्यादातर 2 दिन तक मनाई जाती है। जैसे इस वर्ष 30 अगस्त और 31 अगस्त को ये अष्टमी पड़ रही है। इस वर्ष अष्टमी तिथि आरंभ हो रही है 29 अगस्त रात के 11:25 से लेकर और 31 अगस्त सुबह के 1:59 तक ये रहेगी। क्योंकि श्री कृष्ण जी का जन्म रोहिणी नक्षत्र और मध्य रात्रि में हुआ, इसलिए जन्माष्टमी की पूजा निशिता काल में होती है। इस वर्ष पूजा का मुहूर्त 30 अगस्त रात के 11:59 से सुबह के 12:44 31 अगस्त का रहेगा। इस वर्ष रोहिणी नक्षत्र 30 अगस्त 6:49 से शुरू होके 31 अगस्त 9:44 तक रहेगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पूरे दिन का व्रत रखा जाता है। रात के 12 बजे तक मंदिरों में झांकियां सजाई जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया जाता है। कई क्षेत्रों में इस दिन दही हांडी का आयोजन भी किया जाता है।
इस आयोजन में दही छाछ से भरी मटकी रस्सी की सहायता से आसमान में लटका दी जाती है और बहुत सारे बाल गोविंदा एक दूसरे की सहायता से उस तक पहुंचकर मटकी फोड़ते हैं और उन्हें इनाम भी दिया जाता है। जन्माष्टमी सबसे ज़्यादा मथुरा, वृंदावन और गोकुल में मनाई जाती है। बाल गोपाल की प्यारी सी मूर्ति का पंचामृत से अभिषेक करवाया जाता है और भजन गाकर मध्यरात्रि में उनका स्वागत किया जाता है। कई झांकियों में कृष्ण लीला की, उनके नृत्य नाटक के कार्यक्रमों की भी झलकियां होती हैं। कृष्ण नाम का अर्थ है काले वर्ण का, अपने आप में संपूर्ण आकर्षण। जैसे जैसे श्री कृष्ण इस धरती को पाप मुक्त करते गए, उनकी लीलाओं को देखते हुए उनके 108 नाम जाने गए हैं। श्री कृष्ण श्री हरि विष्णु भगवान जी के 8वें अवतार माने गए हैं, जिन्होंने इस धरती को पाप मुक्त करने के लिए द्वापर युग के अंतिम चरण और कलयुग से पहले जन्म लिया। जन्माष्टमी के पीछे का कारण है धरती पर पाप कर्मों की अति होना। इसके पीछे की कथा है, द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज करते थे। उनके पुत्र कंस ने उन्हें राजगद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी देवकी। देवकी का विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी राजा से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उनकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। इतना सुनने की देर थी कि कंस देवकी को मारने के लिए तत्पर हो गया। देवकी ने कंस से प्रार्थना की, कंस अपने बहनोई वासुदेव को ना मारे, और जब देवकी की संतान जन्म लेगी तो उसे वो कंस को दे देगी। कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया। लेकिन साथ ही कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागृह में डाल दिया। वासुदेव देवकी के एक एक करते 7 बच्चे हुए और 7 संतानों के जन्म लेते ही कंस ने उन्हें मार डाला। जब देवकी 8वीं बार संतान को जन्म देने वाली थी, तब उन पर बहुत बड़े और बहुत ही कड़े पहरे बिठा दिए गए। उसी समय वासुदेव के मित्र नंद और उनकी पत्नी यशोदा को भी संतान होने वाली थी। अपनी 8वीं संतान के होने की खुशी से ज़्यादा वासुदेव जी उनकी संतान के भविष्य को लेकर अत्यंत दुखी थे। संयोग से जब देवकी ने अपने पुत्र को जन्म दिया, उसी समय यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया जो स्वयं योग माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में ले जाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता मत करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। और उसी समय वासुदेव नवजात शिशु के रूप में श्री कृष्ण को लेकर कारागृह से निकले। वासुदेव यमुना पार करने लगे। कहा जाता है कि यमुना नदी की लहरों ने श्री कृष्ण के चरण छूकर प्रणाम किया और श्री कृष्ण जी को आंधी तूफान और पानी की लहरों से बचाने के लिए स्वयं शेषनाग उनके साथ साथ उन पर छाया करते हुए चले। और इस तरह वासुदेव जी नंद जी के घर पहुँचे।
वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक फिर बंद हो गए। जैसे ही कंस को सूचना मिली कि वासुदेव देवकी को संतान हुई है, उसने देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, पर वह कन्या आकाश में उड़ गई और कहा, हे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है, वह जल्द ही तेरे पापों का दंड देगा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो आज भी दुर्लभ हैं। हमारे धर्म की खासियत है कि हमारा धर्म हर एक पौराणिक कथा के तथ्य को आज भी उजागर करता है और हमें इस पर विश्वास करने को मजबूर करता है। इतना ही नहीं, हर घटना के पीछे एक कारण निहित है और उससे आगे की सारी घटनाएं संबंधित हैं। अब जैसे कंस, सुनिए, बहुत पहले एक असुर हुआ करता था कालनेमी, जिसके 6 पुत्र थे, हंस, सुविक्रम, क्रथा, दमन, रिपुमर्दना और क्रोधंता, जिन्हें सदगर्भा कहा जाता था, मतलब 6 गर्भ। सभी अत्यंत वीर और बलशाली थे। उन पुत्रों ने अपने पिता के पिता यानी अपने दादा हिरण्यकशिपु का साथ छोड़कर भगवान श्री ब्रह्मा की उपासना की और वरदान स्वरूप ये मांगा कि उन्हें कोई देवता, यक्ष, रोग, गंधर्वपति, सिद्ध और मनुष्य मार ना सके और ना ही महान ऋषि जो सिद्ध हैं। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। जब हिरण्यकशिपु को इसका पता चला तो बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपने पौत्रों को ये श्राप दिया कि तुमने मेरा साथ छोड़कर ब्रह्मा की उपासना की, मुझे अब तुमसे कोई लगाव नहीं है और तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम सब अपने ही पिता के हाथों मारे जाओगे। तुम्हारा पिता कंस के रूप में जन्म लेगा और तुम सब देवकी की 6 संतानों के रूप में जन्म लोगे और कंस के हाथों मारे जाओगे। कालनेमी असुर सतयुग में भी जन्मा था, मारीच के पुत्र के रूप में, और रावण के मंत्री के रूप में उसे श्री हनुमान जी के वध का दायित्व सौंपा गया था रावण के द्वारा, और इसी के चलते उसकी मृत्यु हुई थी। और श्री हनुमान जी तो देवों के देव हैं, अति बलशाली, उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन हाँ, इसमें उस असुर की मृत्यु हुई थी। इसी प्रकार द्वापर युग में कालनेमी ने कंस के रूप में जन्म लिया और श्री विष्णु के हाथों यानी कि उनके 8वें अवतार श्री कृष्ण जी के हाथों मृत्यु प्राप्त की। श्री कृष्ण जी श्री हरि विष्णु जी के 8वें अवतार माने गए हैं। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू।